हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आइए न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। डाइव इन। व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग्स आर गिफ्टेड बाय नेचर टू अस? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर ने हमें गिफ्ट में दी हैं? एंड लेसन व्यू, क्या पढ़ने जा रहे हैं आज आप? You will learn about advantages of forest, conservation of forest, types of forest and wildlife. Ready? Let's start. Large area where trees and plants grow close to one another are called forest. जहाँ पे आप देखते हो पेड़ बहुत बड़े एरिया में पेड़ एक दूसरे के बहुत नज़दीक उगे होते हैं, ग्रो करते हैं, वो एरिया, वो प्लेस फॉरेस्ट कहलाता है ना। फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर इन्वायरमेंट, क्योंकि आपको पता है जंगल नहीं होंगे तो हमारे एनिमल्स का घर कैसे बनेगा। बहुत सारे जो हमारे एनिमल्स हैं उनका घर होते हैं जंगल। फॉरेस्ट इज अ डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड shrubs covering a large area of land. Forests cover about 22% of the total land area in India. They are made up of living and non-living things. Living things include wildlife, trees, shrubs, wildflower and insects etc. And non-living things include water, rocks, sunlight and air. तो इसमें दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, कवर होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी और लिविंग थिंग्स भी। ट्रीज आर द बिगेस्ट पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट। अब एडवांटेजेस क्या हैं जंगलों के, है ना, फॉरेस्ट के? फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। किस तरह से? We get firewood, timber, lag, gum, pulp, honey, resin, rubber, etc. from the forest. Forests give us soft wood for making crates, plywood and matchsticks, etc. Trees and plants give us oxygen we need to breathe. Yes, बहुत important है क्योंकि trees तो हमें ऑक्सीजन देते हैं ब्रीथ के लिए। They provide shelter to wild animals, जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स का घर होते हैं ये जंगल। They make the environment clean, healthy and pleasant. इससे environment clean रहता है, healthy रहता है, बहुत खुशी वाला माहौल होता है। Forests give us wood pulp from which paper can be made. पेपर भी तो इसी से बनता है ना। Wood is one of the most precious forest resources. It is used for building houses, tools, furniture, etc. They help in good rainfall. They help in prevention of soil erosion. ये आपकी बारिश में, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो हमारे पेड़ हैं वो बारिश लाने में भी मदद करते हैं और धरती की उपजाऊ शक्ति को भी बना के रखते हैं, सोइल इरोजन से भी बचाते हैं, राइट? क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं पेड़ों की वो मिट्टी को जकड़े रखती हैं। Now types of forest. Depending upon the climatic conditions and other factors, the forest in India can be classified into following two types: evergreen forest, deciduous forest and thorn forest, then tidal forest and mountain forest. So evergreen के बारे में पहले पढ़ते हैं, but उससे पहले fact 5. The giant Californian redwood is the tallest tree in the world and it is more than 300 feet high. Evergreen forests, these are the mostly found in hot and humid areas. जो गर्म और थोड़ी humid जगह होती है ना, वहाँ पर होते हैं ऐसे forest. These forests are also called tropical rainforest. These trees in these forests do not shed their leaves altogether at the same time. They remain green throughout the year and trees are tall and have large branches of broad leaves. The important evergreen trees are rosewood, ebony and mahogany. Okay, so ये बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं, बड़े बहुत चौड़े चौड़े पत्ते वाले ये ट्रीज होते हैं। और बैम्बू एंड रीड आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ पे बैम्बू और रीड ये वाले जंगलों में पाए जाते हैं। डेसिडस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द समर सीजन। पत्ते गिर जाते हैं समर सीजन में यहाँ पर अबाउट 6 to 8 वीक्स। दे आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। तो इसका दूसरा नाम मानसून फॉरेस्ट भी होता है, क्योंकि इस जो आपने अभी पढ़ा कि शेड देयर लीव्स, दे शेड देयर लीव्स, इस वजह से भी इसे ये कहा जाता है। They are mostly found in the Deccan Plateau and the foothills in the Himalayan
Mountains, a major part of our country is under the deciduous forest. Teak, sal, shisham, sandalwood and mahua are the main trees of these forests. मार्क कर लीजिए, ये सबसे मेन ट्रीज हैं, टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड और महुआ. देयर वुड इज़ सॉफ्ट एंड एक्सपेंसिव, बहुत महंगी बिकती है ये लकड़ी और बहुत सॉफ्ट होती है. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, जो हमारे घर में फर्नीचर यूज़ होता है ना, इन्हीं जंगलों की लकड़ी से बनाया जाता है. थॉर्न फॉरेस्ट, these are the forest, these are also called scrub forest or desert forest. They grow in areas receiving rainfall less than 75 centimeters. They are found in northwest India covering part of Rajasthan, Gujarat, Punjab, Madhya Pradesh, etc. Kikar, babool, acacia and grass are found in these forests. इन सब जगहों पर ये वाले फॉरेस्ट में ये सब कीकर का आपको पेड़ मिल जाएगा, बबूल का, अकासिया का और ग्रास भी यहाँ पर पाई जाती है. द ट्रीज एंड श्रब्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट हैव लॉन्ग रूट्स, थिक बार्क्स एंड स्मॉल लीव्स. छोटे पत्ते होते हैं लेकिन जड़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं. दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स. सो यहाँ पे इसीलिए ये पानी कम मिलता है इन्हें, तो ये लंबे टाइम तक बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकते हैं ये प्लांट्स. सो टाइडल फॉरेस्ट, इस तरह के फॉरेस्ट को मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है बच्चों. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टास ऑफ द गंगा, महानदी एंड गोदावरी. सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज सुंदरबान एरिया, राइट. दे कैन सर्वाइव इन बोथ सलाइन एंड फ्रेश वाटर, ये दोनों तरह के पानी में सर्वाइव कर सकते हैं. वन ऑफ द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट इज टाइड, राइट. माउंटेन फॉरेस्ट, द माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हायर स्लोप्स, जो ऊंची जगह होती है ना, ऑफ द हिमालयस एंड इन द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ. ओके, हिमालय के जो हाई स्लोप्स होते हैं उनमें और नीलगिरी हिल्स में, साउथ में जो नीलगिरी हिल्स है उनमें पाए जाते हैं. द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर टॉल एंड हैव नैरो नीडल शेप्ड लीव्स. सो इनके जो पत्ते होते हैं वो नीडल की तरह होते हैं, नीडल शेप्ड होते हैं, और ये ट्रीज जो होते हैं बहुत लंबे ट्रीज होते हैं. द मोस्ट कॉमनली फाउंड ट्रीज आर पाइन, ओक, फर, दियोदर, स्प्रूस एंड चर. सो सॉफ्ट वुड ऑफ दीज ट्रीज बच्चों वी यूज़ इन मेकिंग पल्प्स. इस तरह की सॉफ्ट लकड़ी जो है उसको हम लोग पल्प के लिए यूज़ करते हैं. बॉक्सेस जो हम पैक करते हैं ना, उनके पैकिंग के लिए भी यूज़ होता है और फर्नीचर के लिए भी यूज़ होती है. अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, आप इन जंगलों को बचाना भी तो ज़रूरी है, इनका संरक्षण भी ज़रूरी है. द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स हैव रिजल्टेड इन श्रिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट. अब हमें जंगल छोटे पड़ गए हैं, लेकिन हमारे जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और जो एनिमल्स हैं उसकी वजह से हमारे जंगल श्रिंक होने लग गए हैं. जो जंगलों का एरिया है वो कम पड़ने लग गया है इन द कंट्री. सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर फॉरेस्ट. तो ये हमारी ही जिम्मेवारी है बच्चों कि हमारे जंगलों की हमें रक्षा करनी है. वन महोत्सव इज़ अ ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर इन जुलाई. सो एक मंथ नोट कर लीजिए, इस मंथ में वन महोत्सव, एज अ वन महोत्सव इसको नाम दिया गया है, यानी पेड़ उगाने का डे. इस दिन ट्री प्लांटिंग होती है, इसका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. आप भी कर सकते हैं. ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल millions of trees are planted. It was started in 1950 to create an interest among the people to conserve forest. तो ये शुरू ही इसलिए हुआ था कि लोगों के बीच में इसको जो जंगलों को बचाने के लिए लोगों के बीच में ये एक धारणा बनाई जाए कि जंगलों के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे. So today people celebrate Van Mahotsav by planting trees in schools, offices, colleges and homes etc. Many movements like Chipko movement, आप सबको पता होगा इस movement के बारे में, and Apicco movement have been started in India. In these movements, people prevent the cutting down of trees by putting arms around the trees and refuse to move till the tree cutter had left. सो इस चिपको मोमेंट और ये सब मोमेंट जो एपिको मोमेंट था, इसमें क्या हुआ, वो दोनों तरफ से अब पेड़ को चिपक के खड़े हो गए लोग और उसको कटने से रोकने लगे, राइट. और तब तक खड़े रहे जब तक वो काटने वाला चला नहीं गया. तो इसलिए इसको चिपको मोमेंट का नाम दिया गया. वाइल्ड लाइफ, मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स वर किल्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर स्पोर्ट, for their skin,
हॉर्न, फर और टस्क। तो बहुत से ऐसे जानवर हैं, पक्षी हैं जो हम इंसानों द्वारा मारे जाते हैं उनकी स्किन यूज़ करने के लिए, उनके सींग, उनकी टस्क, उनके फर यूज़ करने के लिए। द एंडेंजर्ड द लाइव्स ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल। अब आज इसी कारण से बहुत सारे जानवरों की जो हम लोग हमारे बीच में है ही नहीं, हम उनको आगे शायद देख ना पाएँ। The Government of India has set up many wildlife sanctuaries and national parks to protect our wildlife. इसी को बहुत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं जहाँ पे इन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। इंडिया हैज़ more than 100 नेशनल पार्क्स एंड over 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट इट्स एनिमल वेल्थ। क्योंकि अगर हमारे आज की जनरेशन इन एनिमल्स को देख पा रही है और ये लुप्त होते जा रहे हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन नहीं देख पाएगी इन्हें, राइट। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, ये कुछ नाम है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, केलेसर नेशनल पार्क इन हरियाणा, कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, केंगझर घाटी नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, रणथंबोर नेशनल पार्क एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, Periyar National Park in Kerala. Glossary. Forest, large area of land covered by trees and plants, scattered, spread out, endangered, drying out, conserve, preserve. Quick recall, forest cover about 22% of the total land area in India. Trees and plants give us oxygen we need to breathe. Forests help in good rainfall. Evergreen forests are mostly found in hot and humid areas. Deciduous forests are also known as monsoon forests. Thorn forests grow in area receiving rainfall less than 75%. Tidal forests are also called mangrove forests. The trees in mountain forests are tall and have narrow needle-shaped leaves. Van Mahotsav is a tree planting festival celebrated in India every year in July. Practice time बच्चों. Tick the correct option. Forests give us dash pulp from which paper can be made. Wood pulp. Very good. Likewise do all. Match the following. You have to match the state with the these centuries, right? Okay, fill in the blanks. These blanks are given. Check the knowledge from the chapter. Information is given in chapter like tidal forests are also called mangrove forest. Very good. Likewise do all. Answer the following questions. How are forests important for us? कैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं हमारे जंगल? एंड वेयर डू वी फाइंड थॉर्न फॉरेस्ट इन इंडिया? थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? वन महोत्सव क्या है? कैसे सेलिब्रेट होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों सेटअप की गई गवर्नमेंट के द्वारा? ये सब चीज़ें आपको आपके चैप्टर में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. रीड द चैप्टर, गेट द इंफॉर्मेशन, राइट द आंसर इन योर नोटबुक. इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्टी क्या करेंगे आप? रीड द चैप्टर अगेन, राइट. Creative box, creative bag is hoards. People say that nothing goes waste in forest. Can you explain how? कैसे? Subject enrichment. Imagine that you are a wild animal living in a forest happily. Write a paragraph describing your feelings if you were to suddenly lose your home because of deforestation. सोचिए कि आप एक एनिमल हैं, आप जंगल में रहते हैं, सडनली आपका जंगल से घर आपका छूट गया, आपका घर छीन लिया गया, तो आपको कैसा फील होगा? अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के बारे में बताइए. सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग. पिक्चर गिवन अलोंगसाइड शोज पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट. राइट एनी 3 एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन द फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर. इस पिक्चर के बेस पे आप बताइए ऐसी कौन सी 3 एक्टिविटीज़ जंगल में हो रही हैं, राइट. वैल्यूज़. वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ऑब्वियस, हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए. रीच टू टीच. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट रोल इन द सोइल कंजर्वेशन. तो दोनों तरीके बताइए अपनी क्लास को ताकि आपकी नॉलेज और बढ़े और आप दूसरों को भी अवेयर करवा सकें. एंड वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी हैव फन बच्चों, इंजॉय.